Good morning, students. Today we are going to cover an important topic of the linear equation, that is your Cramer's rule. Cramer's rule is basically used to find out the solution of the linear equation in a very easiest and a simple method. Now before going to the Cramer's rule में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, which is called as determinant. Okay, उसको हम determinant बोलते हैं guys. Okay, determinant होता क्या है? Determinant is nothing but a placing of numbers in a 2 by 2 format. जब भी हम numbers को 2 by 2 format में place करते हैं, that is called as determinant. Now, let's take an example. Okay, for example, if I am placing the numbers something like this: 2, 4, 6, 8. These are my numbers which I have placed in a 2 by 2 format. ये जो boxing type होता है इसको ही हम determinant बोलते हैं. And the placing of the numbers is called as determinant. Now इसको solve कैसे करते हैं guys? Solve करने का तरीका बहुत ही simple है. You have to just go for cross multiplication. Whenever you're cross multiplying, you have to multiply these two numbers first. Okay, इन दोनों numbers को हम पहले multiply करते हैं. So it is 2 into 8. And whenever you're solving determinant, there has to be a compulsory minus sign. एक minus sign compulsory बीच में आता है, and then the next two numbers you have to multiply these two numbers. So it will be 4 into 6. So multiply the numbers. 8 2s are 16 minus 6 4s are 24. Now as you can see यहाँ पे opposite signs है. So there will be a subtraction. So 16 minus 8, the answer 16 minus 24, the answer is 8 with a minus sign. Okay. So this is an example of determinant. Let's take one more example, guys. So first you have to multiply these two numbers. Okay, ये दो numbers multiply होंगे. So it will be 7 into 1 minus, then you have to multiply these two numbers. So it will be 3 into 2, and the minus sign is compulsory. Every time you have to put a minus sign which comes in the operation. So it is 7 1s are 7. Between you are having a minus sign, and 3 2s are 6. So the answer is 1. Okay. So this is how you solve the determinant, and this is the most crucial part of the Cramer's rule. जब भी हम Cramer's rule solve करते हैं तो ये बहुत crucial part होता है to find the determinant. Okay. Okay, students. So after understanding with the determinant part, okay, let's get back to the main topic of today's, that is Cramer's rule. Now Cramer's rule की जब भी हम बात करते हैं, it is divided into 3 steps. Okay, वो 3 step में divide होता है. The first step is to write the equation in general format. Equation को हम लिखते हैं general format में. Okay, that is the first step. वो हमारा first step हो जाता है. Second step होता है find the determinant. ये हमारा second step हो जाता है guys, students. And third step होता है हमारा find the value of x and y. Okay, जिसमें भी तुम्हारा equation होगा either x में और y में. Okay, so that becomes the third step. Okay, now let's get back to the proper solution part. Okay, एक equation ले लेते हैं guys. Now let's so जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था, ओके, राइटिंग द इक्वेशन इन जनरल फॉर्मेट. ना जनरल फॉर्मेट मतलब होता क्या है? जनरल फॉर्मेट मतलब ओके, राइटिंग द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. ओके, जहां पे हमारा वेरिएबल एक तरफ होता है
and the constant term that is your c is on the right hand side. Always remember guys, constant हमेशा कहाँ आएगा, right hand side में आएगा. Constant हमेशा आएगा right hand side में. Okay, example 2x plus 5y minus 7 equal to 0. Okay, ये हमारा इक्वेशन हो गया. Now यहाँ पे हम 7 इज अ कांस्टेंट जो कि है लेफ्ट साइड में, तो उसको पहले लेना है हमें राइट साइड में, तो वो हम शिफ्ट कर लेते हैं. सो 2x प्लस 5y माइनस 7 वहां पे जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 7. ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मेट. ये भूलना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर ये नहीं करते हो some might get wrong. Okay, so always remember constant हमेशा कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा गाइस. Okay, so let's take an example. Okay, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा क्रैमर्स रूल वर्क कैसे करता है. फॉर एग्जांपल, ओके, सो हमने दो एग्जांपल लिए गाइस. फर्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -5 जो कि है हमारा फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हमारा आता है x माइनस y इज इक्वल टू -4. ना इसमें से पहले हमें लिखना है वैल्यूज a1 के, जो हमारा आता है a1 का वैल्यू हमें लिखना है जो कि इट इज अ कांस्टेंट ऑफ x, सो वो आएगा 3. b1 आएगा 4 जो कि इसका कांस्टेंट है, और लास्ट में जो कांस्टेंट हमने राइट साइड में लिखा है वो होता है तुम्हारा c1, a1 b1 एंड c1. सेकेंड, व्हेन यू गोइंग टू द सेकेंड इक्वेशन, ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नंबर्स नहीं है गाइस, सो यू कैन टेक अज्यूम एज 1. यहाँ भी नंबर नहीं है, सो यू कैन अज्यूम एज 1. सो इफ आई एम गोइंग विद द a2, ओके, तो वो आएगा 1. b2 विल बी -1 एंड द लास्ट कांस्टेंट टर्म ये हमेशा होता है c2 विल बी -4. नाउ आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग अ मिस्टेक. जब भी गाइस आप स्टूडेंट लिखते हो, ओके, a1 b1 एंड c1 जब भी आप लिखते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you are writing the numbers, always take the minus sign also. जो भी साइन है उसका, okay, always take that sign. अगर माइनस है, take the minus sign. For example, जैसा c1 है हमारा, c1 में साइन है -5, so we have to take the minus sign. Same way अगर हम बात करते हैं b2 की, तो b2 में -1 है तो वो भी आपको लेना है. c2 की अगर बात करता हूं तो वहां -4 है तो वो भी आपको लेना है. So don't leave the minus sign guys. Okay, minus sign जैसे जो भी कांस्टेंट का साइन होगा दैट यू हैव टू टेक एज इट इज. ओके, यू कैन नॉट स्किप द साइन. ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप. ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व किया है कि राइटिंग द इक्वेशन इन अ जनरल फॉर्मेट. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में हमें जैसे देखा था कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट्स. सो डिटर्मिनेंट्स 3 होते हैं. पहला होता है d, दूसरा होता है dx, and the third one is dy. Okay, let's see one by one. Now d if I am finding, it will be a1 a2 b1 b2. ये एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. ओके, जो आपको लर्न करना है. d के लिए यह फॉर्मूला होता है a1 a2 and b1 b2. Now let's see the values also. वैल्यूज क्या क्या है. सो हमारे वैल्यूज अगर हम देखते हैं पहले सेक्शन में, a1 is 3 b1 is 4. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a1 हमारा जो है वो है 3 एंड b1 है हमारा 4, और a2 b2 इट इज 1 एंड -1, सो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सो इट इज 1 एंड -1. नाउ एज वी हैव सीन, ओके, जब हमने देखा था पहले कि जब ये डिटर्मिनेंट काइंड ऑफ थिंग है, तो डिटर्मिनेंट जब भी हम सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इट विल बी 3 into -1. ओके, ये ऐसा आएगा. कंपलसरी बीच में माइनस साइन आता है स्टूडेंट्स, और 4 into 1. सो ये होगा 3 into -1 जिसका आंसर आता है -3 और -4. सो दोनों के साइन सेम है. ओके, 3 का साइन माइनस है, 4 का साइन भी माइनस है. अगर साइन सेम होता है हम लोग करते हैं एडिशन. सो 3 + 4 द आंसर इज 7, और इसका आएगा माइनस साइन. सो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया डी. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव सॉल्व द वैल्यू फॉर द डी जिसका आंसर आता है हमारा -7. अब हम सॉल्व करने वाले हैं वैल्यू ऑफ dx.
और dx का एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होता है जो है c1 c2। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो a1 a2 था वो रिप्लेस हो गया है c1 c2 से, एंड b1 b2। ओके, सो लेट्स पुट अप द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू तुम्हें पुट अप करना है। तो c1 का जो हमारा वैल्यू था वो था -5, c2 का वैल्यू था -4, b1 इज 4 एंड b2 इज -1। ये हमारे प्री डिफाइंड वैल्यूज है ना। मेथड सेम ही रहेगा गाइस। ओके, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे आएगा -5 इंटू -1, कंपल्सरी बीच में माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू -4। सो 5 1 जा 5, और यहाँ पे डबल माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस। दिस साइन इज कंपल्सरी, बीच में कंपल्सरी माइनस साइन। 4 4 जा 16, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन। सो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे डबल माइनस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 16। सो द आंसर इज 21। तो ये हमारा dx का वैल्यू है। dx का वैल्यू हमारा आया 21। ओके, सेम वे हम लोग फाइंड करने वाले हैं dy। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा d का वैल्यू आ गया है, dx का वैल्यू आ गया है। अभी हम फाइंड करने वाले हैं dy का वैल्यू। ओके, dy का जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह होता है, a1 a2 c1 c2। ओके, यहाँ पे जो तुम्हारा b1 b2 था dx में वो रिप्लेस हो गया है c1 c2 से। ओके, वैल्यूज पुट अप करना है। a1 का जो वैल्यू था हमारा वो 3 और 1 था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये हमारा a1 का वैल्यू जो हमने लिखा था 3, a2 का वैल्यू हमने लिखा था 1, इसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ से गाइस। एंड c1 का जो वैल्यू आया था वो भी हम देखते हैं। c1 का जो वैल्यू था वो था -5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। c2 का जो वैल्यू आया था वो था -4, जो हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट स्टेप में। सो -5 और -4, कुछ इस तरह वैल्यूज है। करना कुछ नहीं, जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया था ओके वही हम फॉलो करने वाले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो आपका 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, ब्रैकेट डालना मत भूलिए। ओके, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंपल्सरी बीच में माइनस साइन आता है। 1 इंटू -5, सो यहाँ पे आएगा 3 4 जा 12, माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे कंपल्सरी माइनस साइन वापस, और 5 1 जा 5, जो कि आएगा माइनस साइन के साथ। ना देख रहे हो गाइस स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डबल माइनस आ गया है, तो डबल माइनस मतलब वो हो जाएगा प्लस। ओके, ना टू वैल्यू आ गया हमारा -12 और +5 प्लस, तो यहाँ पे साइन दोनों के अलग अलग है, दैट मीन्स वो माइनस होगा। सो 12 - 5 आंसर आता है हमारा 7। ओके, और साइन ऑफ बिगर नंबर, सो इट इज -7। सो ये हमारे वैल्यू आ गए dy के। तो गाइज यहाँ पे हमारा स्टेप 2 खत्म हो जाता है। ओके, स्टेप 2 था हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द थ्री डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 खत्म हो जाता है। स्टेप 1 में हमने वैल्यूज लिखे थे a1 a2 a3 c1 सॉरी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये हमने वैल्यूज लिखे थे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने वैल्यूज निकाले dx और dy के, ये हमारा स्टेप 2 था स्टूडेंट्स। अभी स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमें आंसर निकालना है x और y का, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 3। ओके, सो लेट्स गो फॉर स्टेप 3। नाउ स्टेप 3 में जैसे हमने देखा कि हमें वैल्यूज निकालना है x और y का। ओके, x और y का जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला। x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज dx अपॉन d, ये हमारा x का फॉर्मूला होता है, और y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है dy अपॉन d। ओके, dx d dy, ये तीनों डिटर्मिनेंट हमने प्रीवियस स्टेप में निकाले हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें हमने निकाले हुए हैं। सो विल यूज दैट वैल्यूज। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे dx के वैल्यूज आए थे, d का वैल्यू आया था -7 एंड dx वाज 21। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 21 इज द फर्स्ट स्टेप, dx वैल्यू, d का वैल्यू हमारा आया था -7। ओके, सो इट इज 21 अपॉन -7, 7 1 जा 7 3 जा। So your answer for the x is
-3। सेम वे हम लोग जाने वाले हैं y के लिए। ओके, y the formula is dy upon d। ओके, now as you can see in the step 2, now dy का जो वैल्यू आया था वो that was a -7, so we'll substitute over here, so it is -7, that is a dy value, and d value is again -7, so you will cancel these terms, the answer will be 1. So as simple as that, we are getting both the values. Okay, x we are getting as -3, y we are getting as 1, so that completes your step number 3. okay, यहाँ पे आपका step number 3 complete हो जाता है. So basically Cramer's rule we can solve in 3 steps. Okay, step 1, then you can go for step 2, and then the last you will reach to the step 3. Okay, so nothing is there, it's quite simple, quite easy. You can solve the linear equation with the Cramer's rule in an easy and elegant manner. Okay, 3-step process. Okay, as we have seen in the previous term. Okay, how to solve the step 1, how to go for step 2, and how to go for step 3, all we have seen. I hope guys you like the video. Thank you guys.